Welcome everyone to a new video. So in this video we are going to talk about this particular problem. So what we are doing is basically starting from the lactone and then after certain sequences we are trading it with the phenylhydrazine to give us the indole. So यहीं पर ही हमको समझ आ जाता है but that we are dealing it with the Fischer-Indole synthesis. ठीक है? And then they are transforming it into the desired molecule. बहुत इंटरेस्टिंग रिएक्शन सीक्वेंस है. ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर हो तो कैसे अप्रोच करें. आपको यहाँ पे although have shown the final product, पर ऐसा भी हो सकता था आपको फाइनल प्रोडक्ट इसमें नहीं दिया होता. You could be given certain options. ठीक है, और in the exam question किसी भी पॉइंट से स्टार्ट किया जा सकता है. So we can see how they have transformed this entire unit into this fragment. So अगर हम क्लियरली देखने की कोशिश करें तो what we have is this phenylhydrazine. ठीक है, और जो rest of the core है including this carbon and this entire part has come from the cyclic lactone and this diethyl oxalate से. ठीक है, so the first sequence is pretty straightforward. What we are taking is the sodium ethoxide as a base and what we have is a lactone. This is going to abstract this proton. So what we are ejecting out of the system is this. मैं हमेशा I always encourage students कि जब भी आप मैकेनिज्म लिखें always write the bioproducts जो कि हर सीक्वेंस के अंदर निकल रहा है, because during the steps those bioproducts could be very useful to understand कि अगर वो further react कर रहे हैं या either they are acting as a base or they are acting as a acid और प्रोटॉन का सोर्स है या फिर कुछ और रिएक्शंस वो कर सकते हैं. सो व्हाट वी फॉर्म इज दिस. नेक्स्ट स्टेप इज द ट्रीटमेंट विद द सोडियम और डाइथाइल ऑक्सलेट. डाइथाइल ऑक्सलेट आपका ये हुआ. सो यू हैव दिस कम्स हियर, इज गोइंग टू अटैक, दिस विल मूव, इट विल कम बैक एंड इथॉक्साइड विल लीव. सो व्हाट यू आर हैविंग इज इथॉक्साइड इज लीविंग आउट ऑफ द सिस्टम. सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट. Okay, so after this is the product after step 1. Now what they are saying, they are basically expose this compound to H2SO4. So when you expose such compounds to H2SO4, so basically what you are carrying out is the hydrolysis of the reaction. मतलब इस lactone moiety का और इस ester का acidic hydrolysis कर रहे हैं. ठीक है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हम क्लियरली देख सकते हैं what could be the product that we are going to get. ठीक है, यहां मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया और यहां पे भी मैंने इसका एस्टर का हाइड्रोलिसिस कर दिया. सो हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, बिकॉज H2SO4 it has water in it, even 98% pure, it has some water in it. So that is the source of hydrolysis, वहां से हो रहा है आपका. So what we have is this one, and what it says is ये reaction के बाद what you are getting is some sort of an intermediate. It could be this intermediate as well. ठीक है, so this is what is forming. अब आपका ये 5-membered lactone था और what you are forming in C2 is what you have is 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब आपका ये अल्कोहल इस वाले एसिड के साथ साइक्लाइज कर सकता है. इसके साथ अगर साइक्लाइज करेगा, सो व्हाट आर यू गोइंग टू गेट इज दिस पर्टिकुलर लैक्टोन. ठीक है, और एसिड आपका इस पोजीशन के ऊपर, हम क्लियरली नंबरिंग भी कर सकते हैं 1, 2, ठीक है, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6. हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा यहां पर क्या है कि 4th पोजीशन के ऊपर हमारा एसिड है. ठीक है, और 5 पोजीशन पे हमारा कीटोन है और 6 पोजीशन के एसिड से हमारा ये रिएक्ट किया है. सो दिस इज द इंटरमीडिएट. सो दिस कुड बी द इंटरमीडिएट बी, इट कुड बी इंटरमीडिएट दिस और इट कुड बी दिस. और हमने जैसे पढ़ा है कि एज सून एज व्हाट वी हैव द बीटा कीटो एसिड्स, सो दिस इज नथिंग बट अल्फा बीटा कीटो एसिड. सो दे अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन. सो व्हाट यू आर गेटिंग इज बेसिकली दिस पर्टिकुलर डाइकीटो कंपाउंड. ठीक है, सो दिस इज प्रोडक्ट नंबर सी. So starting from this one, we have reached up to this one. ठीक है, पूरा का पूरा sequence. Now what we are doing is basically we are carrying out the Fischer-Indole synthesis using this hydrazine. Pretty straightforward Fischer-Indole synthesis का अगर मैं product भी लिख दूं, so you guys will understand. इसका mechanism pretty straightforward है, जो कि हमको पता है. ठीक है, so what we are going to get is this one. Fischer-Indole synthesis से ठीक है, this is what we are going to get, and here what we are going to have is an OMe
OMe। फिशर इंडोल सिंथेसिस के अंदर हमें फर्स्ट स्टेप ऑफ द सीक्वेंस हमारा क्या होता है कि इज इमीन फॉर्मेशन विद द कीटोन। अब इसके अंदर क्या है कि हमारा ये वाला जो लैक्टोन है, ठीक है, लैक्टोन है मतलब दिस वाला, ये वाला जो कार्बन है, दिस इज नॉट इलेक्ट्रोफिलिक इनफ, इट इज दिस कार्बोनिल विच इज फ्री एज कंपेयर टू दिस कार्बोनिल, क्योंकि ये जो कार्बोनिल है दिस इज अ पार्ट ऑफ अ लैक्टोन, और हमको पता है कि लैक्टोन या एस्टर कार्बोनिल इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द कीटोन। सो फिशर इंडोल के साथ इट इज दिस कार्बोनिल विच इज गोइंग टू अटैक, नॉट दिस पर्टिकुलर कार्बोनिल। जैसे फर्स्ट स्टेप ऑफ द सीक्वेंस में यहां लिख देता हूं कि आपका क्या होता है कि first step is the imine formation. What you have is the imine formation between this particular amine and this carbonyl. So you will have this particular moiety. ठीक है, यहां पर आपका ऑक्सीजन है, यहां आपका कार्बोनिल है, ठीक है। Here you have is OMe, here you have is an OMe. The second step of the reaction क्या होगा कि आपका यहां इनोलाइजेशन होगा इसका, ठीक है। This will enolize to give you this sequence. और रेस्ट आप एक्चुअली अपना बुक के अंदर भी आप देख सकते हैं फिशर इंडोल सिंथेसिस एंड यू कैन ड्रॉ इट बाय योरसेल्फ, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये सारा का सारा रिएक्शन सीक्वेंस किस तरह से हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद आपका क्या होता है कि इट इज दिस रिंग व्हिच इज अटैकिंग हियर, कम्स हियर, इट गोज हियर, सो व्हाट यू गेट इज दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, सो व्हाट यू गेट इज NH एंड हियर व्हाट यू हैव इज दिस, ठीक है, एंड हियर व्हाट यू हैव इज दिस NH, ठीक है। उसके बाद आपका क्या इसका प्रोटोनेशन होता है, इट अटैक्स हियर, दिस लीव्स, सो एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच अंडरगोज आइसोमराइजेशन टू गिव यू सीक्वेंस ऑफ प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन टू गिव यू दिस इंडोल, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड केमिस्ट्री है, यू ऑल नो। अब हमारा सबसे बड़ा सवाल है, once we have this lactone, now what they are doing, they are treating it with the dry HCl in methanol। तो उसका एक्चुअली रोल क्या है? उसका रोल है आपको इज टू ओपन दिस पर्टिकुलर रिंग एंड to give you this particular compound under dry HCl। अब इस वाले बात में मैं फिर से आऊंगा, so what you have is a Cl here, CO2 Me। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में क्लियरली दे आर मेंशनिंग दैट दे आर यूजिंग ड्राई HCl, ठीक है। अगर वो ड्राई HCl यूज नहीं कर रहे होते, नॉर्मल HCl अगर यूज कर रहे होते इस रिएक्शन के अंदर, तो रादर देन गेटिंग अ CO2 Me अंडर नॉर्मल HCl, अंडर नॉर्मल अगर आप कॉन्संट्रेटेड HCl मेथनॉल यूज करते, सो हियर इंस्टेड ऑफ द मिथाइल एस्टर यू वुड हैव गॉट द एसिड, क्योंकि वो उसको फर्दर हाइड्रोलाइज कर देता। सो व्हाट डू यू वांट कि आप रिएक्शन के अंदर आप चाहते हैं इसका मिथाइल एस्टर रादर देन द एसिड ऑफ द रिएक्शन, प्रोडक्ट नंबर E। और लास्ट स्टेप में आप क्या कर रहे हैं, ट्रीटिंग इट विद द फिनाइल एमीन। सो फिनाइल एमीन क्या कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहा है इसका टू गिव यू the desired compound। Although I would not prefer anyone to go via this particular strategy, उसका रीजन क्या होता है? उसका रीजन होता है बिकॉज एमीन्स आपके सेकेंडरी, आपका एक बार रिएक्शन हुआ तो आपका दिस प्रोडक्ट विच यू आर फॉर्मिंग, दिस कैन ऑल्सो अटैक द क्लोरो, सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग द डाइअल्काइलेशन और ट्राइअल्काइलेशन टू गिव यू द सॉल्ट इज प्रीटी हाई। इसीलिए यूजुअली एमीन्स के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, SN2 सब्स्टिट्यूशन यूजुअली प्रेफर नहीं किया जाता। दैट इज द रीजन मोस्टली पीपल गो बाय द रिडक्टिव एमिनेशन। रिडक्टिव एमिनेशन का मतलब क्या है कि इंस्टेड ऑफ द क्लोरो आप क्या करेंगे, यहां पर आप एल्डिहाइड ले लेंगे, तो आप इस एमीन और इस एल्डिहाइड का क्या बनाएंगे, आप इमीन बनाएंगे और उसको फिर आप रिड्यूस कर देंगे, तो उस केस से आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलता है। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द क्वेश्चंस एट टाइम्स इंटरव्यू के अंदर आपको पूछा जाता है कि ये आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, यू गेट द प्रोडक्ट, लेकिन जो प्रोडक्ट है ये भी आपका एमीन है। लेट अस सपोज आपने रिएक्शन के अंदर, मतलब आपने प्रोडक्ट ई लिया, उसके अंदर ये डाला, लेट अस सपोज आपका 50% प्रोडक्ट बन गया है, ठीक है, 50% आपका ये है, पर प्रोडक्ट के अंदर भी आपका एमीन है और स्टार्टिस में भी आपका, स्टार्टिंग मटेरियल में भी एमीन है। अब ये भी आपका इस पर रिएक्ट कर सकता है, ये भी रिएक्ट कर सकता है। सो व्हाट यू एंड अप गेटिंग इज द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट। सो इन द इंटरव्यू यू कुड बी आस्क्ड हाउ टू अवॉइड दैट, and that is when you say that instead of the chloro, but we can start from the aldehyde and we can carry out the reductive amination। मतलब पहले हम इमीन बनाएंगे इसके साथ, एमीन के साथ, और उसका रिडक्शन करेंगे। यूजुअली दैट इज डन विद यूजिंग द हेल्प ऑफ द सोडियम साइनोबोरोहाइड्रेट एसिटिक एसिड मेथड के साथ, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट यू शुड नो अबाउट, ठीक है।
So this was pretty much about this particular problem. I hope you found this problem pretty useful. Thanks a lot for watching the video. Have a good day. Bye.